कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की वो आखिरी शाम आ जाए। हम तो इंतज़ार करते हैं उन पलों का जब हमारी पोटली में आपकी दुआओं का वरदान आ जाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजय दुआ एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पोटली ऑफ पॉसिबिलिटीज़। रक्तदान महादान, और ना जाने हमने कितने सारे मुहावरे सुने हैं खून को लेके। आज हमारे पोटली ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के नए एपिसोड में आई एम सो प्लीज्ड एंड सो ग्रेटफुल टू इनवाइट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ लाइफ सेवर्स ऑफ रांची, जिन्होंने ब्लड को लेके, रक्तदान को लेके एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है पूरे झारखंड में। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लड मैन ऑफ झारखंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन योर हैंड्स टुगेदर इन वेलकमिंग मिस्टर अतुल गेरा। अतुल, प्लीज वेलकम। Thank you so much. Please have a seat. Thank you so much, Atul Bhaiya, first of all, and welcome to Portly of Possibilities. Thank you so much. In fact, my pleasure. I mean, I'm happy to be here. Yes. Thank you so much. तो हम लोग हमेशा एक आज़ादी का सुनते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप being the blood man of Jharkhand, so पहला question, I want to ask from you, how this entire concept of life savers came into your thought process, came into your mind. ये अचानक से हुआ because if I read it for the audience sake, so Atul did modeling as a model for 10 years from 2002 to 2012. That was just, I think, a part of that recreation in my life, just because I was mostly since a very early age in my life, I got into my family business. So ये एक ऐसा मुझे मौका मिला. I think the big thing what was inspiring for me कि while I was into it, मैं रांची से मुझे कैलकाटा आना होता था because somehow I started getting work here. उस समय रांची में खास कुछ होता नहीं था and और बहुत आसानी से मुझे यहाँ काम मिलने लगा and once in a while महीने में 1-2 बार I used to travel. But I think ये तो 1-2 बार जो I used to come, like I used to put in that 2 days in a month, and rest 28 days I was at my place. I had to handle my family business for ऐसा एक situation था. But that was something which was very inspiring for me to keep myself into good shape. And इस field में आपको रहना है तो आपको बहुत अच्छे shape में रहना होगा, And that is what I think gave a lot of motivation to me to be into the gym very regularly and be into good habits. I think अगर आपको अच्छा health, अच्छे shape में रहना है, so I think this is what that was very inspiring for me. And I think 10 साल I continued doing that. I think that was the only reason. And another एक recreation part था because 28 days I full time working. So ये एक अलग सा काम आके मुझे एक दिन बाहर आके I used to meet a lot of people and then going back to work. So ये थोड़ा सा एक recreation का part भी था, but I think बहुत inspiring था just to be in shape. I think that kept me moving. I mean, Great. So थोड़ा मेहनत था मेरे लिए. कैलकाटा हर बार रांची से कैलकाटा and at short notices I used to come. But I think at that age I was quite fond, but at the same time because it had certain aims in life which was बहुत takeaways थे इसमें which was for life. So I think that was worth it, which I realized at that age. Great. तो कभी मन में नहीं आया कि full time यही modeling को ही आगे लेके चलते हैं? कभी था ही नहीं. I mean, I had a very clear plan because I had a lot of responsibility at home. So बहुत clear था. In fact, from Calcutta, I had few opportunities to go to Mumbai. हम लोग जाके कुछ shoots करके भी आए. And I had this realization कि अगर मैं वहाँ कुछ रहूँ, Bombay is a place of to struggle. वहाँ कुछ भी ऐसे नहीं होता है. I was lucky with Calcutta. मुझे बहुत काम मिला Calcutta में. In fact, I've done most of the best works in Calcutta. उस वक्त जितने अच्छे काम थे and I was part of that. All the good assignments which were here. Right. So, but Mumbai के लिए I had to always go there, stay there, and I did not even wanted that because I had a very clear objectives in life. So I had a lot of duties at my place, and I was very happy and I was very clear about it. So इसलिए there was no idea of actually continuing this. But एक समय आने के बाद रोकने का कारण था कि एक नया मतलब एम होता है लाइफ में, समथिंग अगेन दैट रिक्रिएशन भी था जो मैं शिफ्ट हुआ व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड ब्लड डोनेशन ड्राइव. जुड़ा तो पिछले 20 साल से हूँ,
लेकिन 2012-15 अगस्त से हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव शुरू किया। उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, अचानक हाउ इट हैपेंड, बट जब वो शुरू हुआ उसके बाद आई कंप्लीटली लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉडलिंग, ऑल्सो बिकॉज जो रिक्रिएशन चाहिए था मुझे वो मुझे वहाँ मिला, कहीं और मिला। आगे आई वॉज थोड़ा सा एक आउट ऑफ द वेरी हेक्टिक रूटीन आई ऑलरेडी हैड सिंस 1993 व्हेन आई वाज इन क्लास 6, so I had that very hectic routine of full day work with From into class my 6? family. Yes. Okay. So मुझे लगा कि ये recreation भी मुझे मिला, and then a purpose again, एक purpose था, and again when you're into blood donation, you get the same kick of being into better health, being into fitness. Yeah. Then only you are always found eligible to be regularly donating blood. So I think वो जो kick था ना वो मुझे उससे मिलने लगा, and I realized कि this is such a better option for me, and I don't need to go to Calcutta and continue modeling, because जो recreation जो kick मुझे मिलता था in blood donation and moving out to places, motivating people, doing sessions which we started at that time. So I think सारा time जो भी मेरे पास था I wanted to give it to this work. Why I ask this question, Atul Bhai, is say if you consider today's youth, okay, and I think lot many these kids who are watching you since morning here, right? People who are blessed with such kind of a physique and looks and everything, and आपका modeling career, kind of people liked your work and everything. कहीं ना कहीं वो दिमाग में आ जाता आज के यूथ के कि यार आई एम वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डूइंग दिस थिंग एंड दे गेट मोर डीपर एंड डीपर इनटू दोज काइंड ऑफ थिंग्स जस्ट टू हैव मोर फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल, लोग जाने, पर्दे में दिखे, सेलिब्रिटी काइंड ऑफ एक फीलिंग है वहाँ पे। मतलब वाई आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आज भी ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो शायद वो उसमें इतने ज़्यादा इनग्रॉस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो पर्पस है, जैसा आपने बोला कि आपका मेन पर्पस था अपने आप को फिट रखने का और एक रिक्रिएशन वैल्यू देने का, वो शायद ब्लड डोनेशन से आपको ज़्यादा मिलने लगा। बट हाउ डू यू इंश्योर और हाउ डू यू सजेस्ट आज के जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, हाउ डू कीप यू देमसेल्फ इन अ काइंड ऑफ अ बैलेंस पोजीशन कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इतना नहीं घुस जाए कोई चीज़ में कि अल्टीमेटली अपना हेल्थ, अपना पर्पस एंड सारा कुछ उसके पीछे ही न्यौछावर कर दें? See, I think you have to have clarity in your mind कि लाइफ में आपको करना क्या है. I'm not discouraging people जो करना चाहते हैं, they should go, move out, do things. Right. But at the same time, I think अगर लाइफ में ये जो आपने बताया कि लोग जो उसमें गुम हो जाते हैं उसको पाने के लिए, I mean, they sacrifice lot of things and they sacrifice. I've seen and known people have sacrificed health also. Yeah. And इसमें बहुत culture है, that you have to socialize, and I've seen people going into places and also opting, even if they are teetotalers, they've got into drinking and a lot of habits just because they want to fit into that space कि हम वहाँ रहें, and and 10 साल I did not touch it. And I had this clarity in mind कि see, अगर कुछ स्टेटस सिंबल मेरे लिए, अगर कुछ लाइफ में कुछ है, आई थिंक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे फिटनेस से बड़ा स्टेटस सिंबल है ही नहीं और हो ही नहीं सकता. तो आई थिंक जब वो हम रियलाइज करें ना एक कि यू शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दिस, क्योंकि आप कुछ भी पालेंगे, इफ यू आर नॉट हेल्दी आप बीमार पड़ जाएंगे, एंड ऐसे भी हम जो अब जिस कंडीशन में हैं, राइट, एवरीथिंग इज एडल्टरेटेड, पानी, हवा, एवरीथिंग इज पल्यूटेड. तो अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में. अगर आप वहाँ भी सक्सेसफुल हो गए तो बीमार हो गए तो क्या कर पाएंगे? करेक्ट. सो आई थिंक हेल्थ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए हमें किसी भी इस तरह के अब्यूजिव सब्सटेंसेस से दूर रहने की जरूरत है. तो एंड प्लस आई हैड अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड कि मुझे क्या करना है, एंड जो सेटिस्फैक्शन ये काम देता है, लाइक जिसको फिलॉन्थ्रोफी कहते हैं या गिविंग कहते हैं, आई थिंक उतना कोई काम नहीं देता है. एंड आई थिंक जब हम और डीपर समझने की कोशिश करते हैं कि पर्पसेस ऑफ लाइफ, सो अगर आप कुछ बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं सुन के. बहुत सारे संत हैं, लॉट ऑफ ग्रेट पीपल, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दैट लार्जर पर्पस ऑफ यू बीइंग ऑन दिस planet. So लगता है कि गिविंग एंड टू समबडी, इससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ नहीं. अगर आपको भगवान ने किसी चीज़ के लिए बनाया है या आपके अंदर एक एलिजिबिलिटी डाल दी,
You can आप give. दे सकते हैं, और अगर देने वालों में बनाया है तो आई थिंक ये आप बहुत ब्लेस्ड हैं. आई थिंक वो अगर कोई एंजॉय करे तो बाकी सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाएगी उसके. Very nice. I think that was brilliant. So I want to go back to the Lifesavers Foundation and how you got involved so much into this. So was there an incident related to anything where you got kind of more into this kind of blood donation thing, और trigger point क्या था ऐसा जो आप इसके साथ जुड़े? सी शुरुआत तो वो ऐसी हुई थी कि वी विद ग्रुप ऑफ 4-5 and we all started donating regularly and there was a blood bank in my locality. Okay. जहाँ ये मेरा नंबर दे दिया करते थे to lot of people. Okay. कि you call this fellow and he will help you in getting blood. मतलब ही उस समय तो कैसा होता था, जब मैं 2000 अर्लीज की बात कर रहा हूँ, ब्लड बैंक में खास ब्लड होता नहीं था, तो एवरी टाइम यूज टू टेक अ डोनर, उसी को फिर टेस्ट करके देते थे. अब तो क्या स्टॉक रहता है, अब चीज़ें बहुत बदल गई. तो तब कैसा होता था कि एवरीबडी वॉज लुकिंग फॉर अ डोनर फॉर हिमसेल्फ टू गेट अ यूनिट ऑफ ब्लड. आफ्टर दैट ब्लड गेट टेस्टेड एंड देन यू रिसीव इट. राइट. तो वहाँ पे लोगों ने धीरे धीरे जैसे मेरा नंबर देना शुरू किया, तो वो शुरुआत ऐसी हुई थी कि जब मैं पहली बार जब मैंने दिया था 99 में, द डे आई डोनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, वहाँ पे कोई और व्यक्ति था जिसको ब्लड की ज़रूरत थी. ओके. एंड मैंने दिया तो एंड ये बहुत ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी आप ब्लड देते हैं किसी कैंप में या कहीं भी, तो जिस दिन आपने दिया है ना, तो उस दिन तो आपको लगता है कि जितने आसपास है सबको ब्लड दिलाओ, और आपको लगता हो कन्विक्शन के साथ कि चलो तुम भी दो. हाँ, एब्सोल्युटली. सो आई कॉल्ड अ फ्यू फ्रेंड्स, आई कुड मैनेज डोनर्स फॉर देम. तो बड़ा एलिवेट हुए कि ऐसा तो उस समय कोई ऐसा कुछ था नहीं कि किसी को ब्लड की जरूरत है एंड somebody could call somebody and to donate blood and convince. तो मैंने तो खुद पहली बार दिया था एंड आज से 25 साल पहले, एंड देन दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन उन्होंने ना धीरे धीरे मेरा नंबर देना शुरू किया. नया नया रिलायंस आया था उस समय हमारे यहाँ. SMS आने के भी पैसे लगते थे, जाने के तो लगते ही थे, आने के भी लगते थे, फोन भी आने के पैसे लगते थे. तो किसी को मैसेज करना या SMS करना इट वाज बिग थिंग. 3-4 रुपए लग जाते थे. सो एंड पीपल यूज्ड टू रिस्पॉन्ड. एंड हमारी बड़ी फैमिली है रांची में, स्कूलिंग, लॉट ऑफ दैट फ्रेंड्स नेटवर्क. सो लोग आने लगे एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग मी पीपल माय नंबर कि किसी को ब्लड नहीं मिल रहा है, कोई डोनर नहीं है, और चलो आप तो बात करो. एंड बेस्ट पार्ट अगेन दैट रिक्रिएशन, कि द होल डे आई यूज्ड टू बी देयर इन माय फैमिली बिजनेस उधर शॉप में. एंड जब मुझे ये कॉल आता तो मेरे लिए ना आधे घंटे का एक ब्रेक होता था, और ये अच्छे काम के लिए कोई मना भी नहीं करता था हालांकि, तो मुझे भी गिल्ट फीलिंग नहीं होता था मूविंग आउट फॉर समथिंग गुड. सो आई यूज्ड टू मूव आउट ऐसा. उस समय कैसा होता था, आई यूज्ड टू राइड अ स्कूटर, तो हम लोग बजाज स्कूटर से किसी को जाते थे, घर से लेते थे, फिर उनको डोनेट कराया, फिर वापस घर छोड़ो. मतलब पूरा एक कि भाई आपने सुरक्षित किसी को वापस छोड़ दिया, उसने ब्लड दिया, बहुत बड़ी बात हो गई. सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन. एंड देन ऐसा कई सालों तक चलता रहा. चल हम 2012 में हमारी आंखें खुली, मतलब दिस इज नॉट द वे इट शुड हैपन. राइट. सो 2012 में वी स्टार्टेड डूइंग ब्लड डोनेशन ड्राइव्स. मतलब बहुत स्टेट्स में बहुत लोग तब बहुत आगे थे, तो ये अक्ल हम लोगों को बहुत लेट आया रादर, शायद और पहले आता तो और बेहतर होता. लेकिन खैर 2012 15 अगस्त वाज द डे व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग ब्लड डोनेशन ड्राइव्स. ओके. एंड देन मैं आगे इसलिए निकल गया, आई थिंक तब तक आई हैड changed my business, जो family business था वो एक garments में change, एक brand है Spiker and we started a outlet of Spiker. So these are very automated and the way they function and work. So everything is systemized and सब कुछ system run है, everything is all banking, everything is on papers and properly, fully automated. So this way I could get more time. Yeah. उसके पहले it was very difficult for me to move out. So business automate करने से you could actually put more time on these things. So there were people handling that and ये सब businesses में, franchise business में company wants manager that stores and there are, this is how they run the show. And they don't want the owners rather to be there on forefront. Correct. But the people who are trained for that, and so that company has certain control over it to maintain certain standards as per the company norms and all. So I think that worked for me personally because I started getting a lot of time for myself. Right. And whatever I got for myself, I used to put into these works which I used to enjoy. And this is how I could amplify. मतलब मेरा समय जितना ज़्यादा लगा, and the only
thing I have invested most is my time. Time, my energy, and we put in a lot of effort समझने में कि जो नियम है अगर और कैसे पॉलिसी में वो how we can impact and कैसे हम इस पूरे मूवमेंट को rather in nutshell if I could say कि ये ब्लड को और accessible और affordable कैसे कर सकते हैं for everybody. So this is what we have been working on. Yeah. Great. So how many people, Atul Bhaiya, you have currently under this platform? So this is an absolutely it's a voluntary organization. तो हम ना किसी को हायर करते हैं ना किसी को जॉब पे रखते हैं. It's a voluntary organization. बहुत सारे लोग टाइम टू टाइम जुड़ते हैं एंड यू हैव वेरी क्लियर आइडिया. मतलब एक वी डू ड्राइव फॉर गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स. ओके. सो कोई हमारे पास कोई वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ आएगा नहीं, बिकॉज जो आप देते हैं वो डोनेट करते हैं. जो लोगों को इन रिटर्न मिलेगा वो भी निःशुल्क है. इट्स फ्री. राइट. सो पूरे प्रोसेस में देयर इज नो कमर्शलाइजेशन. मतलब देयर इज नो मनी इन्वॉल्व एनीवेयर. सो कोई हमारे साथ ऐसे जुड़ता भी नहीं है. अब जो लोग जुड़ते हैं वो उसी सच्चे मन से जुड़ते हैं कि दे वांट टू डू समथिंग, है ना. सो बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग अलग, कोई टीचर हैं, कोई प्रोफेसर हैं, ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट करते हैं. बियॉन्ड दैट हम बहुत कोलैबोरेशंस करते हैं. ओके. सो दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ. और कोलैबोरेशन में भी मतलब जो 2-3 चीज़ मैंने अपने उस जर्नी में कई ऐसे मुझे लोग मिले जिनसे मैं कुछ सीख पाया. तो आई थिंक हमने 2-3 चीज़ जो एकदम सीख के तुरंत अपने अंदर वो अपने आप को ढाल लिया. एंड आई थिंक दैट हैज़ रियली वर्कड फॉर अस. कि हमने अपना लोगो और ईगो, हाँ, ये दोनों को त्याग दिया. कि भाई ये कि कोई अगर हम कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हमारा लोगो इतना बड़ा, इतना ऐसा होगा, यहाँ होगा, हम आगे होंगे, हम पीछे होंगे. वी डोंट केयर अबाउट इट. दिस इज ब्रिलियंट. द ओनली थिंग इज द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव. अगर वो पूरा हो रहा है तो हमको ना लोगो चाहिए ना ईगो. और ईगो तो हमने समाप्ति कर दिया. कि जो हमारे साथ जुड़ रहा है, जुड़ेगा, वही आगे है, वही हीरो है. और हम अपने आप को बहुत पीछे रखते हैं. ब्रिलियंट. लेकिन नेचर ऐसा है कि आप कितना भी अपने आप को पीछे रखें, लेकिन आपने मेहनत की होगी तो फिर इट कम्स. सो समय से धीरे धीरे दिस इज व्हाई आई एम हियर. सो वी डोंट मूव आउट टेलिंग पीपल कि हमने क्या किया है. बट जो 15 साल 20 साल से जो चल रहा है, धीरे धीरे पीपल सी एंड दिस इज हाउ पीपल रिलेट अस टू दिस cause. Absolutely. So मतलब I am the one, मैं कभी अपने मुंह से, कभी मेरे मुंह से तो ये निकल ही नहीं पाता है. कोई मुझे, जैसे आपने ब्लड मैन बोल दिया, मेरे मुंह से नहीं निकलता है. मैंने कहा आई एम नॉट इवन वर्थ, मतलब मैं तो नहीं बोल सकता अपने आप को. लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं. आप तो लोग अलग अलग नाम ऐसा देते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ करना है. और हमने ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया. ठीक है, अब कुछ समय हमें मिला है और हमने बहुत ईमानदारी से, बहुत जेन्युइनली वी हैव ट्राइड समथिंग एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें हम सुधार कर पाए हैं. और एंड वी हैव रियलाइज्ड एंड इतने सालों में, एंड वी नो दैट वी आर द पीपल हु कैन डू इट. एंड इसको अंजाम तक भी पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारा एक रोल रहेगा. सो वो जो भी एक छोटा रोल है, हम बस उस पर काम कर रहे हैं. ब्रिलियंट. आई थिंक जैसा आपने बोला, लोगो और ईगो हटाना, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आपको अपना पर्पस एक्चुअली करना है. yes. जैसा आपने बोला ना कि अगर आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से उसमें जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं माहौल ऐसा आएगा कि आप उभर के आगे आएंगे ही आएंगे विदाउट हैविंग दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट. सो अतुल भाई, जब आप ये पूरा जर्नी आप लोग पिछले 20 साल से कर रहे हैं, so have you faced or figured out any kind of specific scenarios जहाँ पे लोगों का, बिकॉज आजकल तो बहुत अवेयरनेस आ गया है लोगों को, ऑब्वियसली बिकॉज द वर्क विच यू हैव डन. पहले होता था कि लोग खून देने में डरते थे बहुत लोग. कुछ लोग को लगता था पता नहीं खून दे तो देंगे, कितना टाइम लगेगा उस वापस को रिप्लेनिश करने में, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ये नहीं जाएगा. आई थिंक वो सारा मिथ तो अब कहीं ना कहीं वो चीज़ खत्म हो गया बहुत हद तक लोगों के. हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, आज भी है. मैं ये नहीं कहूँगा खत्म हो गया, आज भी है. लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत लगता है कि आज जो सेंसिटाइजेशन, तो हम लोग अवेयरनेस अभी बहुत करने की ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है.
आज भी ऐसे कॉलेजेस हैं रांची में जहाँ पे 400 यूनिट भी होता है और कहीं 4 यूनिट भी होता है, और दोनों में 10-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं. बट दे आर नॉट विलिंग टू कम अप. नॉट विलिंग टू कम, दे स्केर्ड, द फैकल्टीज हु आर नॉट कमिंग अप. मतलब बहुत सारी फैक्टर्स हैं, आज भी हैं. एंड मैं रिसेंट बात बता रहा हूँ आपको. सो बट एट द सेम टाइम ये भी एक सिनेरियो है कि अगर बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे अगर कैंप्स होते रहे तो पीपल विल कम. राइट. तो मुझे ये लगता है कि पहला काम हमें ये जरूर करना है कि आई स्टिल फील कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, गुड पीपल हु आर विलिंग टू डोनेट, बट दे आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी, दे डोंट हैव टाइम, दे फॉरगेट अबाउट इट, दे आर बिजी इन देयर लाइफ, दे डोंट नो दिस रियल रिक्वायरमेंट्स. Right. Because they're not knowing lot of things about outside world. वो अपने काम में गुम है. लेकिन आप उनको कॉल करेंगे, उनसे मांगेंगे तो वो देंगे, आएंगे. हाँ. लेकिन ये कौन मांगेगा? कौन और ये बात ही बहुत बड़ी है. हाँ. तो करने की क्या जरूरत है? हमें हर जगह जहाँ लोग हैं, जहाँ खून है, वहाँ पहुँचना है. वहाँ अगर ड्राइव्स होगा तो डेफिनेटली लोग डोनेट करेंगे. तो ये ड्राइव्स को हर पॉकेट में, हर कॉर्नर पे पहुंचना होगा. तब ब्लड भी और आएगा, लोगों को मिलना आसान होगा. और इसी जर्नी में ही देख देख के भी, जैसे मैंने कोई एजुकेशन नहीं लिया था, सॉ समबडी डोनेटिंग ब्लड, या कॉलेजेस में जब होता है ऐसे आप किसी से पूछेंगे ये जो आप खून दे रहे हो कितने दिन में बन जाएगा, किसी को नहीं बताओ, नहीं पता है. राइट. लेकिन मेरे बैचमेट्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लड़कियां दे रहे हैं, लड़कों को जोश आ रहा है. मतलब ऐसे लोग देख देख के दे रहे हैं, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने दिया तो कुछ नहीं हुआ. अब आप दे रहे हैं हर 3 महीने में, कुछ नहीं हो रहा है, परफेक्टली फाइन. सो विद एक्सपीरियंस, बाय सीइंग थिंग्स, यू नो, सीइंग पीपल डोनेटिंग ब्लड रेगुलरली. अब मैंने 110 बार दे दिया. आई गो टू कॉलेज एंड टेल देम, यार कोई कहता है सर ऐसे तो इतना बार कैसे दे सकते हैं? तो 110 बार दिया खड़ा तुम्हारे सामने, फिट, कोई बीमार तो नहीं लग रहा, अच्छा खासा सब ठीक है दिख रहा है. सो ये होता है कि बाय सेटिंग दीज एग्जांपल्स, बहुत सारे से लोग हैं बताते रहे, आपके प्रोफेसर ने 70 बार दिया है, 100 बार दिया है ना. दीज आर पीपल डोनेटिंग रेगुलरली. सो ऐसा देख देख के, सुनकर, आसपास कैंप होता रहे, लोग जुड़ते रहे, एंड दिस इज हाउ इट विल, यू नो, कीप ग्रोइंग. अंदर बहुत पॉसिबिलिटी है उस चीज को और एनहांस करने. एब्सोल्युटली. आई मीन सी, जो हम कर रहे हैं उस मतलब बहुत मुश्किल है कि जो हम सेंसिटाइजेशन करते हैं कि कितने लोग समझे हैं, कितने लोग देने आएंगे, मैं कुछ नहीं पता. अगेन ओनली दैट, यू नो, दैट पॉसिबिलिटी ऑफ, यू नो, हैविंग मोर पीपल कमिंग फॉर डोनेशन, उसी होप में हम ये करते जा रहे हैं. धीरे धीरे ये जो, हाँ, वी आर प्रोग्रेसिंग. और डेफिनेटली देयर इज अ क्लियर इंक्लिनेशन, देयर इज अ क्लियर कि वी आर स्टेपिंग फॉरवर्ड. और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो परसेंटेज है, दिस इज हाउ द गवर्नमेंट कैलकुलेट्स कि ज़्यादा लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जिन्होंने रक्तदान किया है, और ज़्यादा हर साल कर रहे हैं. तो ये नंबर्स बढ़ रहा है. तो ऑन द अदर साइड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, नीड बढ़ रहा है, बट उस स्केल में डेफिनेटली लोग तो बढ़ रहे हैं जो दान भी कर रहे हैं. तो वॉलंटरी डोनेशन धीरे धीरे ज़रूर बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड दिस इज हाउ इट विल हैपन स्लोली. सो यू हैड डोनेटेड 110 times. Yes. Any idea how many people have actually got inspired to donate blood just by seeing you? आई थिंक बहुत सारे, मतलब जब हम लोग कॉलेजेस जाते हैं, यू नो, या मैं फोटो डालता हूँ जब, सो वी पोस्ट आवर पिक्चर कि आज मैंने इतनी बार दिया. सो आई रिसीव लॉट ऑफ मैसेजेस कि नेक्स्ट कैंप कब है, यू रिमाइंडेड मी, यार मेरा भी इतना हो गया है, एंड यू नो आई कीप फॉरगेटिंग. आप मुझे कैंप्स अपडेट करते रहिए, एंड दीज पीपल कीप डोनेटिंग ब्लड देन. सो ये जो हम याद दिलाते हैं ना, ये बहुत काम करता है. जस्ट अ रिमाइंडर. मैं किसी को बोला नहीं, मैंने अपना फोटो डाला है कि अब डोनेटेड ब्लड, एंड बिकॉज मेरे आसपास ऐसे वही लोग ज़्यादा हैं जो, यू नो, दे आर समहाउ कनेक्टेड, और यू नो, जो मुझे देखते हैं या मेरे पोस्ट देखते हैं, तो वो धीरे धीरे उनको या तो अच्छा लगता है वो देखना, या वो दे, यू नो, इंस्पायर्ड आल्सो. सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको हमने सिर्फ ऐसा एग्जाम्पल्स से मोटिवेट किया है, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव टर्न्ड अप. Brilliant. I think those are amazing thing to have. I was also reading about PIL. Yes. जो, you know, आपने गवर्नमेंट के तरफ में, I think there is a PIL also that has been there, and I got to know that across India, Jharkhand is the only state जहाँ पे शायद जो ब्लड का इशुएंस होता है इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और समथिंग, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट.
for everyone. So गवर्नमेंट में पूरे कंट्री में प्रोबेबली सभी जगह गवर्नमेंट में गवर्नमेंट पेशेंट्स के लिए जो पेशेंट एडमिटेड हैं उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोबेबली फ्री होंगे और हैं मेरे ख्याल से। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स में पेशेंट गवर्नमेंट में हो या किसी भी हॉस्पिटल में हो कहीं से वो लेने आए वो फ्री है, आई थिंक, विच इज़ नॉट एवरीवेयर इन द कंट्री। दूसरा बेस्ट थिंग कि अब हमारे प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये हो गया है कि नाउ ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट हैव दिस नैट फैसिलिटी। मतलब नैट इज द हाईएस्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड, इसके ऊपर कुछ नहीं है। okay. सो नैट टेस्टेड ब्लड गवर्नमेंट ब्लड बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क मिलता है टू एवरीबडी, चाहे वो पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में हो। इफ यू कम टू दिस प्लेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल यू आर गेटिंग इट फ्री, दैट इज नैट टेस्टेड। So that's a big thing what government has done. There's no doubt. This has happened like couple of 7-8 I think 2018 में ये निःशुल्क हो गया and वो होने के पीछे I mean it's the government of India which is actually reimbursing वो 350 रुपए state को पर donation वो दे रहे हैं कि you know this is how they are reimbursing that cost. So and this is how it has happened. लेकिन कई states में वो कई समय बाद हुआ. We were just lucky that मतलब मैं उसका गवाह रहा और ये सब हमारे सामने हुआ एंड वी हैड वेरी गुड ऑफिसर्स एट दैट टाइम एज द सेक्रेटरी हेल्थ एंड उस समय वो हो गया। सो आई थिंक अगर ऐसे लोग उस जगह हो जहाँ यू नो जहाँ से चीज़ें रिफॉर्म होती हैं एंड देन सही पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, सो बहुत ग्रेट थिंग्स यू नो देश में हो सकते हैं, राइट people at the right place. Right. And so I think... So what role you or the lifesavers had in facilitating this decision? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस आपका भी रहा होगा। उस समय भी हमारा PIL चल रहा था। 2015 में भी PIL हम लोगों ने किया था, फिर 18 में वो PIL को डिसमिस कोर्ट ने किया विद आवर कंसेंट की। तब तक बहुत सारे डायरेक्शंस निकल चुके थे एंड वी वर सेटिस्फाइड विद दोस डायरेक्शन, तो देयर इज नो पॉइंट कंटिन्यूइंग दैट PIL। बट उस पे कंप्लायंसेस कभी नहीं हुए, मतलब उसके बाद देयर वाज लॉट ऑफ चेंजेस इन द गवर्नमेंट एंड उसके बाद कंप्लायंसेस होना शुरू हुए एंड देन एवरीथिंग स्टॉप्ड। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस कि यू नो लोग बदल जाते हैं, जैसे ट्रांसफर्स हो जाते हैं, नए लोग आते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड और they don't want to do it. तो ये बहुत बड़ा यू नो पब्लिक इंटरेस्ट स्टेप होता अगर ये कंप्लायंस हो जाता। एंड नॉट ओनली दैट, इट इज द मैंडेट ऑफ नेशनल ब्लड पॉलिसी। इसमें एक भी शब्द हमारा क्रिएटेड नहीं है, हम सिर्फ जो मैंडेट है भारत सरकार की उसके कंप्लायंस के लिए जस्ट कॉपी पेस्टिंग दैट कि दिस इज योर मैंडेट नॉट आर। ये भारत सरकार का मैंडेट है फॉर पीपल ऑफ इंडिया, आपको इसका कंप्लायंस करना है। हम बस उसी की मांग कर रहे हैं, बस इतनी। और फिर हम लोगों ने वापस PIL किया 2001 में, हालांकि वो एक सिकल सेल एक पेशेंट था जिसकी डेथ हो गई थी, उस पे हमने किया था एंड बट अब वो बच्चा तो रहा नहीं, उसके लिए तो अभी भी जस्टिस इज ड्यू। बट उस PIL में हमें मौका मिला उसको और एक्सपैंड करने का, तो हमने और सिकल सेल, थैलेसीमिया, ब्लड रिलेटेड अनसेफ ब्लड जो सिस्टम में आता है उसको लेके हम लोगों ने उस पूरे PIL को एक्सपैंड कर दिया। उसके स्कोप को एक्सपैंड कर दिया कि इस पे हम और क्या पूरे स्टेट में ऐसे पेशेंट्स के लिए जो सिर्फ कंप्लायंसेस नहीं होने के कारण जो उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकता है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, टेस्ट, प्रिवेंशन में जो काम होना है, केयर में जो काम होना है, क्योर में जो काम होना है, वो जो नहीं हो पा रहा है, विच इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द मैंडेट। दे हैव फंड्स बट ओनली विल की कमी है। तो वो इसके लिए हम लोग वापस से ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचे हैं कि यहाँ से अगर हम लोग दबाव बनाएंगे, कोर्ट से कुछ डायरेक्शंस निकलेंगे एंड ऐसे लोग जिनको वो करना था बहुत पहले नहीं किया, शायद ये सब कुछ यू नो एवरीथिंग कमिंग टुगेदर माइट यू नो गेट द वर्क डन। सो ग्रेट। तो ये यू नो PIL करना, सरकार से जवाब लेना कि बस काइंड ऑफ एन एक्टिविज्म कि आपका ये काम है, आपको ये करना है एंड ऑल दोस थिंग। तो इसका हाउ डज योर फैमिली रिएक्ट टू दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज? आर दे लाइक हैप्पी यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग, और वो बोलते होंगे क्या पड़ा है यार, सब तो देख रहे हैं, आप भी बैठ जाओ घर में, क्या जरूरत है क्वेश्चन करने का एंड ऑल? सो डू यू गेट दोज काइंड ऑफ यू नो प्रोटेक्शन ऑब्वियसली फ्रॉम द फैमिली कि मत करिए एंड ऑल दोज थिंग्स? ये अब हाँ बिल्कुल, अब पहले कैसा होता था, सबको लगता था कि ये बहुत ज़्यादा यू नो पंगे ले रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, ये यू नो दैट वेज। बट लेटली दे रियलाइज्ड कि ये नहीं करेगा तो कौन करेगा टाइप्स।
Yeah. क्योंकि दे यूज्ड टू सी कि जो करता है उसका रिजल्ट भी आता है, एंड लॉट ऑफ पीपल सी होप कि यू नो, एंड लॉट ऑफ पीपल कॉल मी फॉर लॉट ऑफ थिंग्स कि यार, बट आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं विच इज़ वेरी वेरी क्लियर. अगर आपको लड़ना है किसी भी चीज़ के लिए, वो एक्टिविज्म अगर आप कर रहे हैं किसी एक कॉज के लिए, सबसे पहले आपको सही रहना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे. Yeah. क्योंकि लोग आपको घेरेंगे, लोग आपको झुकाएंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे. वो आप तभी कर सकते हैं जब आप सही हैं. Correct. सो हम लोगों ने आज जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया और जो कुछ भी किया, वेरी 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 ट्रांसपेरेंट इन डूइंग आवर वर्क, वेरी ट्रांसपेरेंट. मतलब हमारे पास इस 15 साल में एक चीज़ नहीं है छुपाने को. मतलब कोई मुझसे वो, अगर मुझे जो याद है, मैं 15 साल का हर दिन मैं बता दूंगा हमने क्या किया, मतलब Right. और कैसे किया, जो भी किया या जो कर रहे हैं हम. Correct. सो जो हम करते हैं, बोलते हैं, सोशल मीडिया में लिख देते हैं. बहुत ऐसी बातें होता है ना, आदमी स्ट्रैटेजी बनाता है, इसको नहीं बताना है, उसको छुपाना है, ऐसे करना है. तो हम बहुत वी डू इट, और चूंकि हमें कंसेंसस भी बनाना होता है, और हम तो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि ये आपको करने की जरूरत है. Correct. सो बहुत क्लैरिटी से, बहुत कन्विक्शन से, एंड मतलब वो लीगली, मॉरली, सोशली सही है, ये कन्विक्शन के साथ हम वो काम करते हैं. एंड इसके बाद घर में सबको, मतलब अब तो क्या है ना, सबको बहुत अब विश्वास है कि यू नो कि ये जो कर रहा है, विश्वास तो तब भी था, लेकिन अब विश्वास है कि ये सब काम यू नो किसी अंजाम तक ये पहुंचा पाएंगे एज अ ग्रुप. So we have really gained their confidence also in this journey. Brilliant. So I think those were amazing insight, and you also worked with people who are addicted to drugs and other things, and आप लोग उनके साथ भी काम कर रहे हैं, how to come out of those kind of thing. Reason why I'm asking this is because we read so many papers, newspapers and all. We get to know through different social media news and all that lot of youth, and that is the generation which is going to cover 40-50% of our population in India. And if they are getting dragged into those kind of areas or places, हमारा entire I would say the entire India का जो future है वो भी dark में चला जाएगा अगर youth वहाँ जाते हैं तो what kind of activities basically Lifesavers is doing for those kind of initiatives or those kind of people? See, मुझे ये भी इसके पहले बताना है, इट्स अ वेरी लार्ज स्केल कॉन्स्पिरेसी कि कैसे पूरे देश को कमज़ोर करना है. तो ये जो ड्रग नेटवर्क है पूरे कंट्री में, तो इसके पीछे सिर्फ ये तो जो लोग ले रहे हैं, देश के लोगों को, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो विक्टिम भी हो रहे हैं. इसी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी कोई कर रहे हैं, बिकॉज वाइल बिकमिंग विक्टिम्स दे ऑल्सो हैव बिकम पेडलर्स. बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि आपसे ये जो लोग करा रहे हैं इनका एक लार्जर पर्पस क्या है. अगर आपने उड़ता पंजाब मूवी देखा है तो उड़ता पंजाब के पीछे क्या कहानी है. तो ये पंजाब को कमज़ोर करके बॉर्डर को कमज़ोर करना है. क्योंकि पंजाब से बहुत रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जैसे जो हमारा पंजाब बटालियन है, सिख बटालियन है, पंजाब रेजिमेंट है, यहाँ से बहुत सारे यंगस्टर्स आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर में जाते हैं, फोर्सेस में जाते हैं. करेक्ट. तो अगर ये पूरे पंजाब को कमज़ोर कर देंगे, एंड फिजिकली ऑल्सो दीज बॉयज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, बिल्ट वहाँ की मट्टी में, खाने में, Correct. सब कुछ ऐसा हवा में है कि एकदम लंबे चौड़े होते हैं. एक आदमी 4 के बराबर है, लेकिन वो 4 के बराबर तब होगा जब वो हेल्दी होगा. करेक्ट. इसको नशे में डालेंगे तो 0 है, कमजोर हो जाएगा. तो बॉर्डर को कमज़ोर करने के लिए पंजाब को कमज़ोर किया गया. अभी पंजाब को तो काफी हद तक जो उड़ती पंजाब मूवी ही बन गई है, सबने देखा कि क्या हाल हुआ पंजाब का. धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है. तो दे हैव अटैक्ड द होल कंट्री कि ये जो युवा देश है, सब बहुत बड़ी आबादी यहाँ यंगस्टर्स की है. right. अगर हम इनको ड्रग में डाल देंगे तो पूरा देश को हम कैसे कमजोर कर सकते हैं. सो ड्रग नेटवर्क को हम ऐसे समझें कि इसमें जो लोग जुड़े हैं, somebody ठीक है, जो एक बार पहली बार या जो उस लत में आ गया, उसको सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा जो प्रशासन है उसको उस सिंपैथी, एम्पैथी सब के साथ देखता है कि उसको हमको बचाने की ज़रूरत है जी. उसको एक बार विक्टिम मानता है. लेकिन कोई अगर व्यक्ति उसको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या रिमोटली उस नेटवर्क के साथ अगर जुड़ा है और वो पेडलिंग भी कर रहा है,
उसका जो खेती करते हैं, जैसे जो अफीम और गांजा की आप जो खेती होती है जहाँ से रॉ मटेरियल आता है, उसकी खेती में, उसके प्रोडक्शन में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके उसको पूरा फैलाने में अगर वो व्यक्ति इन्वॉल्व है इन वॉट एवर वे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो जो भारत सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दे ट्रीट दीज पीपल एज पार्ट ऑफ साइलेंट टेररिज्म। तो मतलब आप समझिए वो आतंकवाद का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जितने टेरर अटैक्स हमारे देश में बाहर जो भी हो रहे हैं उसमें बहुत जो पैसा लगता है, लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड ऐसे टेरर अटैक के लिए, कि ये लोग जब करते हैं जो उसमें आर्म्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या कोई लोग उनको मदद करते हैं, तो वैसे लोगों को बहुत पैसे दी जाती है, तभी वो उसको मदद करते हैं, बिकॉज लाइफ इज एट स्टेक। तो इतना पैसा जो लगता है वो कहाँ से आता है? ये ड्रग नेटवर्क से बहुत पैसा आता है। तो ये यहाँ के यंगस्टर्स को हमें उनको याद दिलाना है कि आप अगर नशा कर रहे हो या जो भी ये जो NDPS एक्ट में जो सब्सटेंसेस जो बैन हैं, जैसे अब उसमें वीड है, marijuana है, ब्राउन शुगर है, हेरोइन है, कोकेन है, जो हमारा जो NDPS एक्ट है, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट में जो बैन है ड्रग्स, तो इसको अगर कोई इस तरह से इसकी कमर्शलाइजेशन कर रहा है, उसको स्प्रेड कर रहा है देश में, और जो स्थिति हो रही है, मतलब जो ये नशा लेते हैं बच्चे, इट्स नॉट कि सिर्फ वो नशा उन तक है, इट हैज़ अ वेरी वेरी बिगर साइड और डार्क इफेक्ट्स टू दी सोसाइटी। करेक्ट। सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है, बहुत इमोरल, बहुत अनएथिकल चीज़ें हो रही हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स। सो सिर्फ एक के साथ एक घर में कोई अगर इस नशे में पड़ जाए तो पूरा फैमिली बर्बाद हो रहा है, उसकी पीढ़ी खराब हो जाएगी। सो हम उस स्केल में स्थिति कई जगहों पे आ गई है। तो आई थिंक उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि यू हैव बिकम पार्ट ऑफ साइलेंट टेररिज्म। हम सब 15 अगस्त 26 जनवरी कितना देशभक्ति दिखाते हैं, हम देश के लिए कितना प्यार है, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो यू आर द एनिमी ऑफ द कंट्री। करेक्ट। तो ये सिर्फ एक दिन सिर्फ आपको नेशनल एंथम गाने से नहीं चलेगा। तो अगर देश के लिए थोड़ा भी प्यार है तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि कैसा रहना है हमें। करेक्ट। देश के लिए कंडक्ट कैसा रहना चाहिए। सो कोई बॉर्डर में आपके लिए जान दे रहा है, आपके लिए आर यू रियली वर्थ इट, या आपके लिए कोई जान दे फिर? सो आई थिंक ये हम लोग एक्चुअली एक बड़ी टीम है अंडर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके साथ CID के लोग हैं, NCB के लोग हैं, ड्रग कंट्रोल के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्विस लीगल जो सर्विस अथॉरिटी, उनसे जो लीगल एड काउंसिल्स आते हैं, तो फिर वहाँ जो साइकेट्रिस्ट जो काउंसलर्स होते हैं, जैसे वहाँ रिनपास CIP हैं, वहाँ से लोग हैं। तो एक बड़ी टीम है उसमें 5-6 लोगों की। सो वी मूव आउट टू लॉट ऑफ प्लेसेस। मोस्टली अभी तो हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सबसे ज़्यादा कवर कर रहे हैं। हमने 60-70 कर भी लिया है इंस्टीट्यूशंस को कवर। तो 30-40 हज़ार से ऊपर हमने स्टूडेंट्स को कवर किया रिसेंटली। सो वी बीन डूइंग दैट कलेक्टिवली, गोइंग प्लेसेस, और जाके बच्चों को, यंगस्टर्स को इस तरह पूरी बात बताते हैं। एक मूवी है NCB की बहुत अच्छी, वो बहुत मूवी देखने के बाद ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उनको ओथ कराते हैं, फिर उनको बहुत ऐसे एम्पावर करते हैं कि कैसे आप मदद कर सकते हैं। यू नो, दिस आर नंबर्स लाइक 1933 एक मानस हेल्पलाइन है, और 15,101 नालसा का एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नंबर है। तो ये सब नंबर से कैसे आपकी एनोनिमिटी, मतलब बिना आप अपनी कोई गोपनीय रख के अपना इंफॉर्मेशन, आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी को कम से कम उसके बारे इन्फॉर्म कर सकते हैं, या किसी को मदद पहुंचाना है, नशे से लत से बाहर निकालना है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, डी एडिक्शन में एडमिशन की ज़रूरत है, कोई भी ऐसी मेडिकल नीड है उसके लिए, फैमिली के लिए, व्हाटएवर रिसोर्स, सब कुछ देयर आर सिस्टम्स। तो उसको ये पूरा जो है ना कमिटी अलाइन करता है उनके लिए, उनको मदद पहुंचाता है। सो एक कलेक्टिव प्रयास है सभी के साथ कि ऐसे युवाओं को, हम स्टूडेंट्स को बचा सकें, बिकॉज कॉलेज और ये सब हब ऐसे हैं कि जहाँ बहुत एक को भी आपने स्टूडेंट को पकड़ा तो उससे आप तुरंत फैला सकते हैं नशों को। और कोई ऐसा जगह नहीं मिलता जहाँ आप एक साथ बहुत बच्चे हैं कि कॉलेज में 10,000 20,000 बच्चे हैं। हॉस्टल्स आर वेरी प्रोन। तो वी आर मूविंग आउट, रीचिंग आउट टू ऑल दीज प्लेसेस। सो 2 चीज़ें आई थिंक, एक तो कानून का डर, और एक आपके अंदर हम शर्म जगा दें, मतलब यू नो कि दिस इज हाउ योर कंडक्ट हैज टू बी, लोग देख रहे हैं आपको। सो ये लोगों के अंदर एक सेंसिटाइजेशन, ये लोगों के अंदर लाना।
सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन ये जो सब एजेंसीज अपने अपने तरीके से बच्चों से बात करके उनको सेंसिटाइज करते हैं. This you guys are doing only for the Jharkhand, entire Jharkhand, और अभी मोस्टली हम लोग रांची में हैं, आसपास डिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, बट अलग अलग वो जो टीम है उनके जो ब्रांचेस हैं डिस्ट्रिक्ट्स में वो कर रहे हैं, बट वी आर मोस्टली टुगेदर. तो ये सारे स्टेट्स में अमूमन होता होगा? हाँ हाँ, अब स्टेट पुलिस सभी स्टेट्स में करते होंगे, एनसीबी इज इन एवरी स्टेट, ड्रग कंट्रोल इज इन एवरी स्टेट. सो अब जैसे झारखंड इज़ वेरी इफेक्टेड जस्ट बिकॉज वहाँ कल्टिवेशन भी, जो वहाँ ज़मीन है कुछ जिला में, दैट इज़ वेरी फर्टाइल फॉर दीज प्रोडक्शन ऑफ पॉपी और ये, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी हुआ. मतलब 26,015 एकड़ ज़मीन तो पुलिस ने नष्ट किया है, जला दिया. हाँ, अब है कि बट नाउ वी हैव टू सी दैट जब इतना बड़ा स्केल ऑफ लैंड वाज यूज्ड, इसका मतलब क्या ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल किया होगा, गांव के गांव लोग लगे होंगे उसमें, इतने लोग एंगेज हुए उसमें, बहुत सारे ड्रग एडिक्ट भी हो गए होंगे, तो जो वो कर रहे हैं वो एंड यूज़र भी हो जा रहे हैं. राइट. फिर उनको पैसे भी मिल रहे हैं उस काम को करने के लिए, और पैसे इतने मिल रहे हैं कि जितना उसने कभी नहीं देखा. सो इतना पैसा है कि लोग कुछ भी कर जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं प्रशासन से. सो इट्स वेरी, इसलिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कानून अपना काम करेगी, लेकिन अगर इतना बड़ी आबादी अगर इस काम में लग जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको वापस पहले तो मेन स्ट्रीम में लाना कि भाई ये गलत है एंड आप प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक ये एक पार्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना बहुत एग्रेसिवली कि जितना हम लोगों को समय मिल पा रहा है, आई थिंक वी आर कवरिंग 2-3 इंस्टीट्यूशंस एवरी वीक. तो आधा दिन चला जाता है हम लोगों का उसमें, कहीं भी जाके 2 घंटे का सेशन होता है, एंड देन आना एंड जाना एंड देन प्री पोस्ट दैट इवेंट. सो वो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग थिंग. सो बट काफ़ी एग्रेसिवली बहुत लीड्स भी आ रहे हैं वहाँ से. सो और आई थिंक इट इज़ अब यही है पॉसिबिलिटी, हम अपना प्रयास कर रहे हैं एंड कितनों को हमारी बात समझ आ रही है, हम कितनों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, वी रियली डोंट नो द काउंट, बट डेफिनेटली ऐसा मिलकर जाके बाद में जो थोड़ा बहुत फीडबैक आता है, हमें ऐसा लगता है कि उसका असर हो रहा है. एब्सोल्युटली, बिकॉज द वे यू आर डूइंग दिस और जितना डिटेल में आपने बताया, सो यू नो वर्किंग फ्रॉम द फेसेट्स ऑफ मॉडलिंग to working as a lifesavers volunteer to starting that PIL and then doing all this kind of thing with a part of doing certain thing for the society जहाँ भी आपका कोई vested interest नहीं है. और जैसा आपने बोला ना कि you know, and again this is for all audience and especially youth, कि कैसे आप अपने शरीर को फिट रह सकते हैं and by not using those kind of thing which are not good for your body. I think we keep on saying to people कि आपको क्या करना है ये जानना उतना important नहीं है, क्या नहीं करना है ये जानना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड आई थिंक जिस तरह आपने बोला कि कानून के अलावा लाइक इट हैज़ टू बी अ रीइंफोर्समेंट, एंड ये हम लोग सब जितने लोग बैठे हैं, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस. वी शुड स्टार्ट डूइंग थिंग इन आवर ओन कैपेसिटी. बिल्कुल, जहाँ बोल सकते हैं वो, क्योंकि इतने बड़े रोकना इम्पोर्टेंट है यार. एब्सोल्युटली. एंड ये सोच लेना कि यार वो मेरे से रिलेटेड नहीं है. जनरली क्या होता है, अगर बच्चों का भी देखा जाए तो अगर घर का बच्चा कुछ गलत कर रहा होता है तो पेरेंट्स जाके सबसे पहले पकड़ते हैं कि क्या कर रहे हो, डांटते हैं, फटकारते हैं. दूसरे का कर रहा होता है बोलता है तुम्हें क्या मतलब है. बिल्कुल. तो आई थिंक वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी हमें सब में आनी चाहिए. बिल्कुल. एंड देन आई थिंक जो आप लोग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू एंड योर एंटायर टीम, बिकॉज फर्स्ट थिंग यू आर डूइंग इट विदाउट एनी यू नो वेस्टेड इंटरेस्ट एज सच, यू नो सब कुछ छोड़ के. और ये मानना है, आई थिंक दिस इज व्हाट द ड्राइविंग फोर्स. आई मीन अगर कुछ मिलने लगेगा ना, जैसे इफ यू हैव सम इंटरेस्ट, तो ये फिर पैशन खत्म हो जाएगा. सो आई थिंक हमारी एक्चुअली ताकत ही यही है, एंड दिस इज हाउ पीपल टेक अस ऑल्सो. मतलब जो लोग इंस्पायर होते हैं विद द होल मूवमेंट, एंड कि इसका जो टेक अवे वो ये है कि मतलब अल्टीमेटली जैसे ब्लड भी किसी को निःशुल्क मिलना है, तो पीपल नो कि दीज पीपल आर डूइंग आउट ऑफ दैट पैशन, यू नो, दैट दे वांट टू, यू नो, व्हाटएवर देयर वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी. करेक्ट. तो ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वैल्यू दिस, एंड जब वो वैल्यू करते हैं तो क्या होता है कि फिर आपको बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर इसका इम्पैक्ट आता है. हाँ, लोग सोचते हैं, मन में वो बात उनको लगता है, एंड देन वॉट एवर वे आई थिंक बहुत सारे लोग अपने तरीके से भी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं कि अगर वो नहीं कर पाए तो कुछ और करते हैं. बहुत सारे लोग
पैसे से करना चाहते हैं, किसी को पैसे से मदद कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कुछ भी, कि समय नहीं है तो वी टेल देम तुम्हें ये बहुत सारे तरीके हैं, यू शुड डू दिस वे, कि आप अपने से जाके करो इसको। Absolutely. तो मुझे लगता है कि इस तरह से एक लोगों को हम पुश कर पाते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी है, विच इज जैसे हमारे अंदर खून बफर है तभी हम देते हैं, right. तो हम सबके अंदर आपको अगर भगवान ने, क्योंकि जिनको जैसे एक थैलेसीमिया, अब उनको ब्लड चढ़ता है तो ईश्वर ने उनको उतने दिन के लिए तो भाई ब्लड लेने के लिए बनाया, उनको लेना पड़ेगा। अब हमें देने के लिए बनाया कि हमें थैलेसीमिया नहीं है ना, right. तो हम दे सकते हैं, हमारे अंदर खून बन रहा है, तो कम से कम किसी भी, अगर आपको पैसे के लिए देने के लिए बनाया है तो आपका बनता है देना। और थिंक ये जो मैं बहुत रिलेट कर पाता हूँ, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी आप देखेंगे जो दसवंत हम कहते हैं, हमने कमाई का 10वां हिस्सा, तो ब्लड भी आप देखेंगे तो 90% इज व्हाट यू यूज, 60% यू यूज द मोमेंट यू वेक अप टिल यू स्लीप, 60% blood you use every day. 30% is what is stored in your organ called spleen. Okay. So 90% blood is there for you. जो लास्ट का 10 है ना, जैसे बॉडी वेट इंटू 8 इज मोर स्पेसिफिक एज पर साइंस सेज, आप दे सकते हैं। तो लास्ट का 10 के अंदर यू कैन गिव एंड योर बॉडी वोंट माइंड, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको चाहिए नहीं वो, क्योंकि आप वापस दे के बना लेंगे उसको। करेक्ट। तो आई थिंक बहुत ऐसी चीज़ें हमारे पास हैं जो हम दे सकते हैं। आप नॉलेज दे रहे हैं, आप लोगों को अपना, तो आप किसी को पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, मतलब बहुत ऐसे तरीके से यू कैन रियली कंट्रीब्यूट, एंड जिससे जितना आप देंगे वो एक तो आपका बढ़ेगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, and then the sense of satisfaction, the purpose of you, the whole your existence, I think वो जब reaffirm होता है तो बहुत आपको खुशी देता है, and कि why you are here, and आपको जमीन पे, मतलब आप जो दुनिया में है ना, उस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देता है कि आपका यहाँ रहना कोई वैल्यू रखता है। देयर इज समथिंग फॉर, you're there for some purpose in मैं ना आई थिंक आई एम हियरिंग लाइक एन एक्टिविज्म आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरे को बचपन से आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग भगत सिंह अलॉट, ठीक है। बहुत सारे चीज़ मैं बहुत पढ़ता था उनको, इतना पढ़ता था कि कभी कभी लगता था मैं ही भगत सिंह। और जो थॉट प्रोसेस जो आप बता रहे हैं ना कि आपके जीवन में रहने का जो एक उद्देश्य होता है, वो हम लोग शुरू करते थे ना, एक एग्जांपल देते थे कि आप में और एक रोड साइड डॉग में, कुत्ते में क्या फ़र्क है? कुछ नहीं है। वो भी खाता पीता सोता है, हम भी खाते पीते सोते हैं। अगर हमारा उसके अलग कुछ एक पर्पस नहीं है लाइफ में, तो शायद हमारी ज़िंदगी उसी के बराबर है। एंड बिकॉज वी आर इन दैट ह्यूमन जोन, एक मनुष्य जूनी में है, तो हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा पर्पस होना चाहिए जो सिर्फ देने के लिए होना चाहिए लाइफ में, ना कि सिर्फ अपनाने के लिए। इनफैक्ट भगत सिंह एक, आप जो बोल रहे हैं, ऑल मेमोरीज गेटिंग रिफ्रेश, और भगत सिंह ने कमाल की लाइन ये कही थी कि इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क अगर लिखना चाहूँ भी फिर भी इनकलाब लिख जाता हूँ। मतलब वो उनको बोले कि शादी कर लो, तुम ये कर लो, बोले कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कि मेरे को इनकलाब चाहिए। तो सेम जैसा आपने बोला ना कि वो रिक्रिएशन कब ना कब जाके आज आपका वो एक बहुत लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस बन गया है। एंड आई हैव टॉक टू सो मेनी पीपल इन लास्ट 5-6 years. I've heard about you from different people and all. Whatever work you are doing in terms of creating possibilities in human life, चाहे वो किसी को एडुकेट कराना हो ह्यूमन ब्लड के लिए, चाहे वो जो ड्रग एडिक्ट हैं उनको एक सेंसिटाइज कराना हो कि ये क्यों गलत है और इससे कैसे कैसे हार्मफुल हो सकता है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू अतुल भैया एंड वॉट एवर यू आर डूइंग। सो बिफोर वी क्लोज दिस, आई थिंक एज अ नॉर्म, एज वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर ऑल आवर एपिसोड, सो ये जो पोटली बना हुआ है बीच में, बिफोर यू लीव, फॉर नेक्स्ट जस्ट स्पेसिफिक 1 to 3 point which you want to give learning to our पोटली, कि ये 2-3 चीज़ you want to hand it over to our पोटली, so that our audience who are seeing this also can take lot of learning from your life. I think हम सभी के अंदर, I would be maybe repeating that, कि whatever way, I think अगर आपको किसी भी फॉर्म में, किसी भी एरिया में अगर भगवान ने थोड़ा सा एलिजिबल बनाया है टू गिव समथिंग टू दी सोसाइटी, एक तो हमें डेफिनेटली वो करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा,
हम मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, आई एम नथिंग, इवन आफ्टर डूइंग दैट आई एम नथिंग। अगर आपने कुछ सोच लिया कि भाई आप कुछ कर रहे हो, देन यू फिनिश्ड, खत्म। क्योंकि आप ऐसे भी आते जाते फ्लाइट पे चढ़े, 30 सेकंड बाद वो फ्लाइट लोगों को कैसे खत्म कर देता है, कोई idea तो यू नेवर नो आप Yeah. क्षण बन के लिए वो कब चले जाओगे, यू डोंट नो। Correct. तो आई थिंक इसीलिए अगर हम अपना ईगो अपने यहाँ से निकाल लें और ग्रैटिट्यूड रखें, थैंकफुलनेस रखें, कीप थैंकिंग गॉड फॉर वट एवर यू हैव, बिकॉज बिलीव मी, शायद जो लोग देख पा रहे हैं उनके पास मोबाइल होगा, आई एम श्योर, करेक्ट। घर पे बैठ के देख पा रहे होंगे। अगर किसी को रियली लाइफ में देखना है दुख, या आप कितने ब्लेस्ड और प्रिविलेज्ड हैं, तो आप जिस शहर में भी हो, जिस जगह हो, कहीं आसपास अपने सरकारी अस्पताल चल जाइए, एंड आपको इतना दुख दिखेगा, एंड वो जो भी व्यक्ति होगा वो घर जाके अपने माता पिता के तो पैर छुएगा कि उसको भगवान ने इधर दे के बहुत कुछ पहले दिया। करेक्ट। सो ऐसे इतने सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और उसकी बहुत बड़ी आबादी है। तो हम जिनके पास कुछ है वो बहुत बहुत छोटा परसेंटेज है। तो आई थिंक हमारे पास थैंकफुलनेस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर हम उसमें भी अगर ईगो लेके बैठे हैं तो भाई यू आर ऑलरेडी फिनिश्ड। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, जो हम लोग स्कूल्स कॉलेज में भी जब मैं अपने लाइफ से किसी चीज़ को भी रिलेट करता हूँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल स्टूडेंट्स ऑल्सो कि यार आप किसको अपना आइडल बनाते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ गुड फॉर योर लाइफ। अगर आप इमिटेट करते या किसी एक्टर एक्ट्रेसेस को, अगर आप अल्कोहल लेते हुए या ई सिगरेट या सिगार लेते हुए वो आपको इंस्पायर कर रहा है, सो यू नॉट हियर फॉर दिस। सो आपको अपना हीरो किसको चुनना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप ये क्या करने वाले हो अपने शरीर से। जो प्लेयर्स, सैडली जो इंडियन बड़े बड़े क्रिकेटर्स कुछ दिन पहले तक ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करते थे, जो हमारे आज अब हमारे एज बैन कर दिया गया हमारे देश में, बताया गया कि 50,000 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पैसा डुबाया है। करेक्ट। कुछ दिन पहले तक हमारे क्रिकेटर्स कर रहे थे, जिनको हम भगवान के बाद का दर्जा दे रखे हैं रादर। आज भी आएंगे तो लोग भूल जाएंगे कि वो इसका प्रमोशन कर रहे थे। सो कोई आपको ये करने को कह रहा है, लेकिन वो व्यक्ति क्या वो करके बना क्या हमारे क्रिकेट प्लेयर जो बड़े नाम है, क्या वो ऑनलाइन गेम खेल के बने क्या? वो नहीं ना, वो तो क्रिकेट खेल तो के बने। आपको चुनना है ना कि अगर आपको वो बनना है तो ऑनलाइन गेम खेल के तो वो भी नहीं बना। Correct. बनना वो है आपको। Correct. वो कहता है ऑनलाइन गेम खेलो, लेकिन उसके जैसा बनने के लिए ऑनलाइन गेम तो नहीं खेलना है, तो उसका ये बात तो काटना होगा। करेक्ट। आपको क्या करना होगा, जो वो किया। तो ये तो आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो आई थिंक यहाँ ना बहुत बच्चे धोखा खा जा रहे हैं, आई थिंक यंगस्टर्स, कि जो उसने बोला हम वो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करके वो बना वो नहीं देख, वो हम नहीं देख रहे। एंड इट्स अ ब्रिलियंट पॉइंट जो आपने So मेंशन I किया। think यहाँ आई थिंक दिस इज व्हाट हम लोग जाके उनको जगाने की कोशिश करते हैं। Superb. कि देखो सुबह उठते हो, अगर पान मसाला में लिखा है निकोटिन नहीं है, ग्रीन डॉट डाल दिया है, तो सुबह नाश्ते में क्यों नहीं खाते हो? क्या मतलब जो भी यहाँ हमारे जो सर क्रिकेटर्स खिला रहे हैं पूरे देश में अपना प्रचार करके, वो अपने बच्चों को, अभी तो वो दादा हो गए, पोता पोती, बच्चों को नाश्ता में देते हैं क्या? कोई नहीं देता है। उनके दांत देख लो, पता चल जाएगा, कोई नहीं खाता है। करेक्ट। दुनिया को खिला रहे हैं क्योंकि पैसे मिल रहे हैं उसको। तो आपको डिसाइड करना है आपको क्या खाना है, क्या नाश्ता में आपको खाते हो क्या नहीं। तो हमें पता है हमारे शरीर को सुबह नाश्ता में क्या चाहिए, हमारे दादा दादी पापा मम्मी हमको क्या खिलाते थे, लेकिन हम क्या अपने शरीर को दे रहे हैं। सो ये हमें डिसाइड करना है कि अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, तो कोई नशा रखना है तो अच्छे हेल्थ के लिए रखो, खेलो, अगर शरीर फिट होगा तो योर लाइफ विल बी मोर फुलफिलिंग। आप जीवन को और ज्यादा जी पाएंगे, और ज्यादा ही नहीं जी पाएंगे, आप 15-20 साल तो बाय कर सकते हैं। ट्रू। मैं जब यहाँ था तो आपके एक साथी मुझे मजाक से 18 साल का क्यों कह रहे थे। तो अगर मैं 44 का हूँ तो मैंने 15 साल बाय कर लिया, राइट। तो अगर मैं 70 का होंगे तो मैं आपको 55-60 का दिखूंगा। तो दिस इज हाउ। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, इनफैक्ट ये संगत का असर होता है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है संगत इज व्हाट आपको चुनना है सही। अगर आपने सही संगत चुन लिया तो आप मोस्टली बहुत अच्छा काम करके बहुत बिना रिग्रेट के साथ शांति से एकदम ऊपर जाएंगे। विथ लॉट ऑफ गुड थिंग्स यू विल टेक अवे।
तो जाके आपको बहुत जवाब भी नहीं देना पड़ेगा एंड भगवान भी खुश होंगे आप जिनको भी मानते हैं. Great, सो आई great. थिंक दिस इज व्हाट संगत अच्छा रखें आसपास तो आई थिंक Superb. ज़्यादातर आप भटकेंगे नहीं. ग्रेट. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट यू 2-3 थिंग्स मेंशन कि एक तो आपने संगत चुनना है और किसी को जो फॉलो कर रहे हैं क्या फॉलो कर रहे हैं वो भी आपको दिमाग लगा के वो करना कैसे है. बना वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हर इंसान के पास कुछ ना कुछ देने का होता है. आपको Absolutely. भगवान ने जो दिया है जो एक्स्ट्रा बफर में है आप उससे ही कंट्रीब्यूट बिल्कुल, करिए. बिल्कुल, बट आई थिंक दीज वेयर सम अमेजिंग इनसाइट अतुल भैया एंड आई एम रियली प्रिविलेज्ड. आई एम टेलिंग यू नहीं, वेरी ऐसी कोई बात ऑनेस्टली नहीं, ऐसी कोई जो स्टोरीज मेरे को सुनने को मिली आज और जिस तरह आपने बताया the actual perseverance of building this entire thing and why you are doing this with lot of purpose and lot of emotions, hardcore emotions. I think thank you so much for coming over here. And I think all the audience who are watching this, I think Atul Gera hails from Ranchi and from my hometown. And he has founded this Lifesavers in Ranchi, one of the founding members, and has been doing amazing work रांची में और बाकी काफ़ी शहरों में झारखंड के. एंड जाके आप प्लीज़ पढ़िए इनके बारे में. एंड बहुत सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये और इनकी सारी टीम यूथ के अंदर में खासकर एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे रही हैं लोगों को इन टर्म्स ऑफ हाउ टू curb the bad habits in terms of drugs, in terms of other things, and to adopt more well-being into their life through blood donation and physical activities and other things. So that's it for today. And thank you, Atul Bhaiya, once again for being a part of Portly of My pleasure, Possibilities. absolutely, my It was a privilege to have you over here. Thank you so Thank you so much. Thank you so much. See you on the other side with one of the other guests in Portly of Possibilities. Till then, thank you so much and have a very great nice day. Thank you so much.